been modified excellently. But with that modification, we need to like check with what we are doing. So we have to increase our responsibilities now so that we can learn more and more through the textbook. The textbook is no less than the NCRT. So previously we were like, we need to study NCRT, 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 but now I think our own textbook is more than enough for any exam or any particular competitive exams basically. So today basically we are starting with the chapter 3 of your paper 1, that is inheritance and variations. I will just share the screen first. Okay, so are you all able to see the screen? Yes. Yes, sir. Yeah, okay, thank you. So this is the chapter 3 of our text, first part of biology, that is inheritance and variations. Before starting with the lecture, I would like to give few instructions which will be common for all the lectures I will be taking from now onwards. So first, kindly keep your mic on mute. After every specific topic, I do understand it's quite difficult now than our daily lecture like the blackboard and marker lecture. But then whatever question and answers you will be having, we will discuss after every topic. And kindly use the chat box only for asking doubts and posting any questions if you are having. If I could not able to answer it during the lecture, I will text you back later on. And obviously, as we are working on this virtual platform, your support, attention, and cooperation is highly expected to make these sessions more interactive at this time of crisis. And this last one, kindly bear with me if it's not like it's very rarely such thing happens, but if there are any technical glitches in between. So thank you. With this, we will start with our first topic, that is the inheritance and variations. I hope you all must have seen something like or heard or read something about inheritance or variations. So I am considering that you have some basic idea, but let's start from the very basic thing. So very first thing is like, do you all think that you all look exactly same as your parents or as your siblings? So I think everyone will accept no, we do not look exactly similar. Exactly similar as this perfectly the exact replica. However, there are some kids which are like monozygotic twins who looks exactly similar, but even there are few differences which are not visible morphologically. So the answer for the question is no, we do not have any exactly looking sibling or we are not exact copy of our parents. However, few characters are conserved and transmitted from generation to generation. How and why? So this is because the mechanism of inheritance and variation. So we all know, you all must have heard from your family also that you are having hairs like your mother or eyes color like your father, or someone is having curly hairs in your family, someone is having straight hair in your family, which is having some similarity. Like किसी की दादी को curly hairs था, तो even the daughter-in-law is having, or daughter, sorry, a granddaughter is having a curly hair. So that's like we are transmitting some characters from generation to generation, which are specific basically. And this all is happening because of the inheritance and variations. And how it is happening? Because we all know there is something called as deoxyribonucleic acid, that is DNA. So DNA is a nucleic acid which plays very important role in this process and considered as a genetic material in most of the organisms. I have used most of the organism over here because though most of the highly evolved animals and plants shows DNA as a genetic material, there are some viruses and lower organisms which do contain RNA as a genetic material. I will repeat, it is only present in a lower animals, not in a higher animals. From now onwards, whenever I will talking about genetic material, it will be DNA. So the picture you all can see on a screen is the structure of DNA. I hope you all must learn this same thing in your 11th standard biomolecules chapter. So DNA is a double helical structure, consists of hydrogen bonds in between and pyrimidines and purine, nitrogenous bases, sugars, etc. Basically, nucleotide is a basic unit of the DNA.
which is polymerized to form a complete long chain DNA. So this is a very important thing, and we will be keep on repeating these things about DNA again and again during our lectures. So I hope everyone is clear about the DNA part, and if I hope you all were already aware about DNA, but still just the revision part. Then what is exactly inheritance or variation means? As I mentioned, the transmission of genetic material, that is the DNA, from one generation to the next or from parents to offspring. So that's how we carry the characters, like a particular hair color or a eye color or a hair pattern like straight or curly or anything, like any body particular feature which we are taking from our parents is called as inheritance or a heredity. At the same time, we have to note that even if a particular family in which a person or a couple is having 5 babies, not all fives are exactly same or showing very close similarities. There are some differences. Even though they are babies of a same couple, there are differences, and these differences between the parents and the offsprings, or among the offspring of the same parents and among the individuals of the same species, are called as variations. The variations can be due to the recombinations and crossing over which happens during the cell division. And the study of this genetic variations and inheritance or heredity is considered or is studied under a big umbrella called as genetics. So genetics is a study of heredity and variations. So this particular chapter and the next two chapters basically will come under the unit of genetics and evolution. I hope you all have checked that your book has been divided into few units. So this is the second unit. The first unit is the reproduction in plants and in animals. So that is a genetic part. This is a genetic part which we are starting now. Then the entire idea of genetics and how it is started, like the DNA which we are talking about, okay, DNA is the genetic material and is copying some characters from one generation to the next. Even though we know this particular thing right now, long back in the 18th century, a priest known as Gregor John Mendel had already discovered the phenomenon of inheritance, that he has proved that there is something which is getting transferred from one generation to the next generation. And he was the first one who has proved there is something called like genetics and that do play important role in our life. So that's why Mendel is called as father of genetics. I hope that is clear. Then, how Mendel has started all this journey and how he came across the genetics or a gene or a factors or these characters. So actually he was a priest and he had started planting some plants in his backyard of the church basically. And then somehow he started uh, a cultivation of a particular plant called as garden pea and started observing some features. Like we all see plants are growing here and there and we all can observe them, but then obviously his observations were some keen and different from what we are observing. Like even we are able to see every differences, but we are not that keen to note all things, but the Mendel did. So he actually gave the first accurate explanation for the mechanism of inheritance using the hybridization technique. He used a particular plant called as garden pea, that is a Pisum sativa, uh, for his experiment and studied the inheritance of 7 characters. So based on this, he actually postulated different principles which were known as laws of Mendel's basically. Yeah, there are 3 laws that we will talk later on. So before going to that particular part, I would like to show you some basic characters which Mendel has studied. So basically Mendel had studied 7 different characters of this particular plant, that's the garden pea, and the characters were seed shape, seed color, pod shape, pod color. I hope you all know pod, that is the external covering of the uh, peas. Basically, you all must have, it's nothing but the normal mutton, green peas.
and then flower color, flower location, and plant height. He has given two main terminologies to us, or which plays actually important role in genetics right now. That is the dominant and recessive characters. I hope you all must have heard somewhere about this particular characters, dominant and recessive. So, uh, in this particular experiment, he has started showing. So he considered, okay, if I'm talking about seed shape, then the round will be dominant, wrinkle will be recessive. If I'm talking about color, yellow will be dominant, green will be recessive. Shape, inflated, constricted. Pod color, green is dominant, yellow is a recessive. And then flower color, flower location, and very important. So plant height, based on which he has given different principles. So I would like you to pay attention over here. So he actually had noticed plant height as a first, and it was tall as a dominant and dwarf or a short as a recessive. And he was very successful in his experiment, and he actually proved all whatever he was trying to, like there is a transmission of characters from one generation to next generation, and he actually could prove everything whatever the genetics was saying. And based on that, now what was genetics which we are having. So genetics is actually a broad term nowadays, in which we are trying to study different diseases, different health conditions, even the ancestral history. And not that only, based on genetics or by studying genetics, we can also predict what can be a possible conditions or health condition or a diseases a person can suffer in future. So I hope I could explain you exactly how important the genetics is. So Mendel was the first, as I mentioned, and he could successfully prove the three laws, which we will talk later on. But how and why he became successful in studying these particular principles or this particular basics of genetics? Uh, so there are two reasons behind that. So I will tell them one by one. So very first is his experiments were very okay. Sorry, very first. So before that, I would like to say, if you observe the reasons, I think the reasons can be actually correlated to any success. Like if we do our work with passion, with dedication, and with extreme care, I think we all can be successful in whatever we are doing currently. So the reasons are actually same in case of Mendel also. So his experiments were actually well planned and involved large number of samples. So when we are doing a particular experiment, I think it's very important that the particular sample or a number of conditions. So I can't say a particular drug, let's say example of a drug. So if I am having a particular drug now, let's say against the corona, which is a Ayurvedic drug, and I want to propose that this particular drug is working. Obviously, I can't directly say that it's working. I have to do some studies. So you must have heard some terms like preclinical studies, clinical studies, or human trials in last 2 days, because of the corona, these terms are actually coming in limelight. Like basically, even a normal person is able to understand or trying to understand what does it mean, which is a good thing. So basically, my only motto in telling that is like, I can't take anything directly as like, okay, I will just give it to my 5 family members. The 5 family members will take it or take the medicine, and they will claim that, okay, we are doing good, we are cured of corona, and then I will like go in the market and claim that, okay, my drug is working and it's wow, wonder drug and it can cure anyone. So I can't do that. For taking any particular experiment or any particular drug, I need to take some kind of data or a well-planned experiment which will prove what I'm saying. So for that, we need to do some analysis in a big population. So even if I say in terms of human trials or a corona vaccine, it's not like कि हमने 10 लोगों को दे दिया and then they are working. No, there are different stages. We say phase 1, phase 2, phase 3. पहले वो लोग देंगे 50 लोगों को, then देंगे 1000 लोगों को, and then maybe 5,000 people, and then they will prove okay that the drug is working. So I think the same can be considered over here. Also, the only difference is here we are talking in terms of the plant sweet garden pea or a Python sativa. So yeah, because the Python sativa, as you see, even a small pod is having minimum 6 to 7 seeds in that particular pod, which makes the
experiment more feasible because the number which we are having in our hand is quite big in case of the particular plant. So the same helped the Mendel also because the number of pods or the seeds were used, so large samples can be used for the experiment, which gives him more statistically significant data, which he could prove to anyone. Then the plant which he had selected for his experiment was or is an annual plant, that is, it is available throughout the year, and the plant is having actually very short life cycle. So if we consider one particular plant, so the life cycle is about 3 to 4 months. It means within a year, Mendel can cultivate about 3 to 4 generations. So which will give him more and more, which would like give him more and more data. So even the selection of material or a plant was important aspect in his success. Excuse me. Sorry. Then he carefully recorded. So obviously it's very important that whatever experiment we are doing, we need to have a proper data record so that we can prove what we are saying. So in his case also he carefully recorded all the observation, no matter it's very small, it's very big, it's something fascinating or it's something very common like the seed is just wrinkled. Who will pay attention? No one, but he did. And then he recorded and he actually expressed whatever results he was getting in a form of ratios so that we can implement the ratios of the concept for a larger scale or different principles. And in this pea plant, he actually studied different characters. As I mentioned or listed in a previous slide, there were 7 characters he studied, and his luck was good that all 7 characters he studied was showing different traits. So if I say height, then there was tall, there was dwarf. If I say color of the seed, there was yellow, there was green. So he was very fortunate or lucky that whatever he selected was showing such characters, which was a good thing. However, I would like to mention over here that there are few characters which do not follow what Mendel says or has Mendel postulated, which we will talk in a later part of our chapter. But I would just like to consider that point over here. But a major part of genetics follows Mendel's law. So that is very important for us. So as I mentioned, and from the first slide onwards, there is something which is actually controlling all these characters, no matter its height or it's a color of a seed or a flower color or a flower position. There is something which is controlling. Obviously, if I consider human being, my eye color, my hair color, my body posture, everything is something related or something I'm taking from my parents, from my mother, from my father. It's like something we are taking. So that's why it's very important. So, but at that time, it was done in somewhere in the 18th century. Just imagine that thing. When we were not that advanced in technology, he could just say there is something which can actually controlling all these things. And he actually called the particular thing as a factor. So if you read somewhere in a Mendel's book, factor, the factor is nothing but a gene which we are saying right now. So you must have heard this is genetic, a particular disease is genetic, or a particular person is looking same as his father is genetic. So that is genetics or a gene, which we are talking, which we will consider throughout the chapter. Uh, then what is this particular gene or a factor? So factors are a small part of a DNA which are located on a chromosomes and which can be transmitted from one generation to the next generation. Okay, okay. तो हम लोग थोड़ा हिंदी में जाएंगे and I will go slow. Sorry, I will go slow. Okay. So just for थोड़ा रिवाइज करेंगे कि मेंडल के सक्सेस के लिए क्या रीजंस थे बेसिकली. पहली बात वेरी इंपॉर्टेंट, ही उसने सब एक्सपेरिमेंट प्लान किए थे प्रॉपरली एंड उसने बहुत लार्ज सैंपल यूज किया था. सेकेंड वन, उसने जो प्लांट सिलेक्ट किया था दैट इज अ गार्डन पी और मटर, मतलब हिंदी में मटर बोलते हैं उसको. तो वो एक एनुअल प्लांट था, मतलब पूरा साल तक वो अवेलेबल हो सकता है और उसका लाइफ साइकिल भी बहुत छोटा था, मतलब 3 से 4 महीना सिर्फ. मतलब एक साल में वो कम से कम 3 से 4 बार उसको ग्रो कर सकता था. थर्ड वन, कि केयरफुली रिकॉर्ड है, मतलब उसने जो भी देखा, जो भी ऑब्जर्व किया, जो भी उसको डिफरेंसेस लगे,
सब उसने एकदम प्रॉपरली रिकॉर्ड किए, एंड देन जो भी उसने प्रॉपरली रिकॉर्ड किया था उसने उसको अच्छे से एनालाइज किया। ये मतलब बहुत जरूरी होता है। इट्स नॉट लाइक कि कुछ भी देखा रिकॉर्ड किया। अभी तुम लोगों ने 11 में प्रैक्टिकल्स किए रहेंगे, हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसका जो भी रिजल्ट आता है हम लोग लिख देते हैं, फाइनली कंक्लूजन कर देते हैं। इट्स नॉट दैट सिंपल व्हेन इट्स कम, मतलब जब हम लोग एक्चुअली साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करते हैं या फिर कुछ बड़ा एक्सपेरिमेंट करते हैं, इसमें बहुत सारी स्टेप्स इंपॉर्टेंट होती है विच वी नीड टू फॉलो। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। देन उसने जो भी प्लांट सिलेक्ट किया था पी वाला, उसमें उसने जो भी कैरेक्टर्स सिलेक्ट किए थे, दैट इज द 7 कैरेक्टर्स जो मैंने पहले भी एक्सप्लेन किए थे, वो सब उसका मतलब इट वाज अ वेरी गुड थिंग। मतलब बहुत अच्छी बात है कि उसने जो भी सिलेक्ट किया वो उसको जो एक्सपेक्टेड था वो दिखा भी रहा था। और मैंने ऐसे मेंशन किया कि देयर आर फ्यू कैरेक्टर्स जो मेंडल के लॉज को फॉलो नहीं करते, वी कॉल देम डेविएशन फ्रॉम मेंडल्स लॉ बेसिकली। सो दैट इज इम्पोर्टेंट, बट ओके, जो बड़ा जेनेटिक्स है वो मेंडल के लॉज पे ही चलता है आज भी। दैट्स व्हाई मेंडल इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। एंड आई टॉक्ड अबाउट जीन। जीन मतलब एज आई मेंशन कि डीएनए का एक स्मॉल पार्ट जो फंक्शनली कुछ तो काम करता है उसको हम लोग जीन बोलते हैं। तो तुम लोगों ने सुना रहेगा कि प्रोटीन्स रहते हैं हमारी बॉडी में, बहुत सारे एंजाइम्स रहते हैं। हम लोग जो भी खाना खाते हैं वो सॉरी ओके, तो हम लोग जो भी खाना खाते हैं आफ्टर ईटिंग अ पर्टिकुलर फूड, जैसे हम लोग किसी ने आलू खाया है तो आलू में स्टार्च रहता है, तो अपनी बॉडी में पर्टिकुलर एंजाइम रहते हैं जो उसको ब्रेक डाउन करते हैं। तो ये सब एंजाइम्स आते हैं कहाँ से? बेसिकली ये सब एंजाइम्स के लिए हमारे बॉडी में जीन्स होते हैं। ये जीन्स पर्टिकुलर एंजाइम के लिए कोड करते हैं, मतलब वो जीन्स से हमें प्रोटीन मिलता है। तो जीन्स एक्चुअली प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और मतलब जो भी हम लोग अभी दिख रहे हैं, ईच एंड एवरीथिंग, अपना दिखना, पर्टिकुलर हैबिट, पर्टिकुलर बॉडी पोस्चर और पर्टिकुलर डिसीज कुछ भी हुआ है, बीमारी एंड ऑल, समवेयर समहाउ वो जेनेटिक्स से ही रिलेटेड होता है। तो उसके बाद मैंने बोला था कि अबाउट कैसे ये जीन्स एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन तक पास ऑन होते रहते हैं, एंड बिकॉज ऑफ विच हमें पर्टिकुलर कैरेक्टर दिखता है, क्योंकि बच्चे के आईज माँ जैसे है या फिर बाल पापा जैसे है, लाइक समवेयर लाइक दैट इज समथिंग हम लोग जो आँख से दिख रहा है वो बोल रहे हैं, बट इट्स नॉट लाइक कि हम लोग सिर्फ आँख से दिखते हैं, इट्स एक्चुअली जेनेटिक लेवल पे भी होता है। वेरी बेस्ट एग्जांपल आई वुड लाइक टू गिव, मतलब देना चाहिए, सबने सीआईडी तो देखा ही रहेगा। इन एनी केस कुछ हुआ तो देख, मतलब वो लोग फॉरेंसिक लैब जाते हैं, डीएनए चेक करते हैं कोई किसी भी क्रिमिनल का, देन वो लोग बोलते हैं कि हाँ मैच हो रहा है नहीं हो रहा है करके। तो वो क्यों होता है? सो बेसिकली सबका 99.9% डीएनए मैच होता ही है, बट सम 0.01 डीएनए सबका अलग होता है जो हम लोग को यूनिक बनाता है। इसलिए हम लोग एक दूसरे से अलग दिखते हैं, अपने पेरेंट्स से अलग दिखते हैं, अपने भाई बहन से अलग दिखते हैं। So that is all the reasons behind Mendel's success, because वो क्यों अपने काम में सक्सेसफुल हुआ। एंड देन ही इंट्रोड्यूस द टर्म्स लाइक डोमिनेंट एंड रिसेसिव। वो क्या है, कैसे है, वो लोग दैट वो मैं अभी नेक्स्ट टॉपिक में एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ तक इफ यू हैव एनी डाउट तो प्लीज पोस्ट कर देना। आई होप अभी इतना फास्ट नहीं था। ओके, सो आई थिंक वी आर गोइंग गुड। कुछ भी डाउट रहेगा प्लीज पोस्ट कर देना। ओके, सो एज जैसे कि मैंने बोला कि जेनेटिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? बिकॉज कुछ भी हो रहा है स्मॉल और बिग थिंग वो जेनेटिक्स की वजह से ही हो रहा है, एंड दैट्स व्हाई मतलब इसी वजह से जेनेटिक्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फील्ड बन चुका है। सो अगर मैं तुम्हें बताऊँ फ्रॉम रिसर्चर्स पॉइंट ऑफ व्यू, तो हम लोग कुछ भी करते हैं, लेट्स से कैंसर, आज बहुत सारे मतलब इंडिया में कम से कम 60 to 75,000 वेल लाइक एवरी डे किसी ना किसी को कैंसर होते रहता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होते रहता है। तो हम लोग डिसीज मतलब हम लोग ट्राई करें कि हम लोग कैंसर को क्योर कैसे कर सकते हैं, तो उसके ट्रीटमेंट कैसे ढूंढ सकते हैं। बट द प्रॉब्लम इज हम लोग लाइक ओके हम लोग के पास ट्रीटमेंट्स है, बट इतने इफेक्टिव नहीं है कि हम लोग उसको परफेक्टली क्योर कर सकते हैं। हाँ क्योर कर सकते हैं कब? अगर हमने उसको अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट कर दिया तो। बट
व्हेन इट्स कम टू लाइक थर्ड और लाइक लास्ट स्टेजेस ऑफ द कैंसर, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। और वो क्यों होता है? बिकॉज अ पर्टिकुलर जीन, मतलब कोई तो जीन रहेगा जो पर्टिकुलर प्रोटीन बनाती है, वो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस हो जाएगा शायद से, कि वो ज़रूरत से ज़्यादा प्रोटीन बनाना चालू कर देगा। सो वी ऑल नो कुछ भी ज़्यादा हो जाता है तो इट बिकम्स हार्मफुल। तो सेम, तो कोई भी प्रोटीन भी हमसे कि ज़्यादा हो गया है बॉडी में, तो वो अपना हार्मफुल साइड दिखाना जरूर चालू कर देगा। एंड इन दैट वे इट विल स्टार्ट हार्मिंग और हेल्थ, मतलब वो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम कर देगा। एंड द कंडीशन, मतलब जो भी रहेगा वो मोर क्रिटिकल एंड क्रिटिकल बनते जाएगा। दिस इज फॉर एग्जाम्पल जहाँ पे जिन ज़्यादा कुछ बना रहा है, प्रोटीन बना रहा है। ऑन अदर हैंड देर इज समथिंग लाइक कोई तो जीन बॉडी से डिलीट हो जाता है, डिलीट हो गया या फिर इनएक्टिवेट हो गया, इट मीन वो जीन का जो फंक्शन होता है अपने बॉडी में वो होगा नहीं। मतलब कोई भी जो पर्टिकुलर प्रोटीन वो जीन बनाता था वो बनाएगा नहीं, मतलब अपनी बॉडी में वो जीन का और वो प्रोटीन का लेवल कम हो जाएगा। एंड लेवल कम हो गया मतलब ऑब्वियसली उसका अगेन हार्मफुल इफेक्ट रहेगा, और सम अदर वे वो कैंसर को प्रमोट करेगा। तो एक्चुअली अपना बॉडी इज वेरी कॉम्प्लेक्स सिस्टम, एंड उसमें पूरा बैलेंस है। इट्स नॉट लाइक कि कभी भी हमने कुछ भी किया, मतलब हमने मतलब इट्स लाइक वेरी वेग एग्जांपल देना चाहूँ तो वी सी पीपल से ओके मुझे डाइटिंग करने हैं, मुझे जिम करने हैं, हम लोग कुछ दिन करते हैं, कुछ दिन नहीं करते। लाइक दैट इज समथिंग कि जो हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, इसलिए हम लोग अपनी बॉडी से करते हैं। लाइक एज पर माई विल आई विल डू वॉट एवर आई वॉन्ट। बट बॉडी का ऐसा नहीं है। बॉडी का इज द इंटरनल फंक्शन आई एम टॉकिंग अबाउट, पर्टिकुलर बैलेंस, मतलब उसका एक संतुलन बना के रखती है बॉडी प्रॉपरली, यूजिंग डिफरेंट प्रोटीन्स, बायोमोलिक्यूल्स, जीन्स, RNA molecules, ribosomes, etc. तो फॉर दैट थिंग जेनेटिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये पर्टिकुलर चैप्टर में अब इसके आगे बहुत सारा टर्म्स यूज होगा बेसिकली। तो जेनेटिक्स इज, आई डोंट नो तुम लोगों ने पहले पढ़ा है नहीं पढ़ा है, तो इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा डिटेल में जाऊंगा अबाउट द टर्म्स एंड ऑल। डिटेल इन सेंस बहुत मतलब आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस यू कि क्या टर्म्स एक्चुअली मीनिंग क्या है। तो इसलिए वी विल स्पेंड सम टाइम ऑन दिस टर्म्स। देर आर मतलब एक्चुअली यहाँ पे कुछ 23 टर्म्स दिए हैं तुम्हारे बुक में, एंड ईच वन ऑफ देम इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ऐसे ऐसे हम लोग आगे आगे जाएंगे इन डीप ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर, तो ये टर्म्स अगेन अगेन यूज होते रहेंगे। तो अच्छा होगा कि तुम्हें पहले ही समझ जाए कि उसका मतलब क्या है। So, so, so there are some terms which we need to study now. So very first term is a character. So character is something. So मैंने यहाँ पे भी पहले ही बोला था कि कुछ तो ट्रांसफर हो रहा है, या फिर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, या फिर फादर से मदर, फादर एंड मदर से बच्चे को कुछ तो जा रहा है। बट एट दैट टाइम हमें पता नहीं वो जीन है करके, तो हम लोग क्या देख सकते हैं कि हाँ उसके बाल सेम है, उसके आंखें सेम है, उसके पर्टिकुलर बॉडी फीचर, लेट से उसके बाल कर्ली है या स्ट्रेट है, मतलब जो अपने पेरेंट्स से मैच हो रहा है, बेस्ड ऑन दैट हम लोग उसको प्रेडिक्ट करें एट दैट टाइम, एंड दिस इज टर्म्ड एज कैरेक्टर। तो इट इज अ स्पेसिफिक फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ये कुछ भी हो सकता है, हेयर कलर, हेयर पैटर्न, आइज कलर और एनीथिंग। तो इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर ऐसे मैंने मेंडल का एक्सप्लेन करना चालू किया है। तो मेनली मैं मेंडल का ही एक्सपेरिमेंट्स के बारे में एक्सप्लेन करूंगा, and we will talk mainly about Mendel's experimental animal, experimental plant, that is Poisum sativum, और उसके कैरेक्टर्स क्या क्या थे वैसे। तो अगर मुझे कैरेक्टर बोलना है तो मैं बोल सकता हूँ कि कैरेक्टर मतलब प्लांट का हाइट क्या है, उसके सीड्स का कलर या सीड्स का साइज, ये सब को हम लोग कैरेक्टर कंसिडर कर सकते हैं या फिर बोल सकते हैं। नेक्स्ट टर्म इज ट्रेट। ट्रेस इज समथिंग एन इनहेरिटेड कैरेक्टर, अनडिटेक्टेबल वेरिएंट। तो इसका मतलब क्या है? तो अगर मैंने बोला कि ओके कैरेक्टर इज समथिंग हाइट, मतलब मैं प्लांट के हाइट के बारे में बोल रहा हूँ, तो देर आर ट्रेट। ट्रेट मतलब वो प्लांट टॉल हो सकता है या फिर ड्वार्फ हो सकता है। अगर मुझे बोलना है कि सीड, मतलब उसके जो सीड का क्या हो सकता है, तो सीड का कलर ग्रीन हो सकता है या फिर येलो हो सकता है, इसे हम बोलते हैं ट्रेट।
The next term is a factor. So factor, as I mentioned, मतलब पहले ही मैंने बोला था, it is a unit of heredity which is a particularly present in an organism. तो हर एक के पास factors और genes होते ही है body में present, and ये particular factors are actually responsible for inheritance and expression of a character. मतलब अगर बच्चे को जो जीन्स आ रहा है फ्रॉम पेरेंट्स, अगर उसमें से लेट्स से टॉक अबाउट कर्ली एंड स्ट्रेट हेयर, कि अगर बच्चे को स्ट्रेट हेयर वाला जीन्स आ रहा है या फिर फैक्टर आ रहा है पेरेंट्स से, तो उसके बाल भी स्ट्रेट ही रहेंगे. अगर वो कर्ली होंगे तो वो कर्ली ही होंगे, अगर जीन कर्ली वाला होगा तो बाल भी कर्ली होंगे. इन दैट पर्टिकुलर वे द फैक्टर्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल. एंड देन एज आई मेंशन कि मतलब फैक्टर इज समथिंग जो मेंडल ने बोला था 18th सेंचुरी में. नाउ द फैक्टर हैज बिकम जीन. फैक्टर इज नथिंग बट जीन. तो हम लोग फैक्टर को अभी जीन बोलते हैं, which is the particular segment of DNA which is responsible for the inheritance and expression of a character. मतलब अगर पर्टिकुलर जीन होगा, अगर ड्वार्फ के लिए होगा तो जीन होगा तो प्लांट ड्वार्फ ही होगा, अगर टॉल के लिए होगा तो टॉल ही होगा. बट देयर आर सम कंडीशंस कि कौन सा जीन्स कब होगा. तो कोई भी प्लांट अगर हम लोग बोले जो पर्टिकुलर कैरेक्टर, कोई जीन, तो लेट्स से कि प्लांट के पास हाइट के लिए एक पर्टिकुलर जीन है, तो वो जीन के दो फॉर्म्स या फिर मल्टीपल फॉर्म्स हो सकते हैं. मतलब वो जीन एक तो टॉल के लिए हो सकता है या फिर ड्वार्फ के लिए हो सकता है, या फिर बंदे के पास दोनों भी जीन हो सकते हैं, ड्वार्फ के लिए भी हो सकता है और टॉल के लिए भी हो सकता है. सो दिस इज कॉल्ड एज फॉर्म्स ऑफ जीन्स और अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन्स. सो देयर आर समथिंग कॉल्ड एज alleles or allelomorph, which means the two or more alternative forms of a gene or a factor, and they actually occupy a same position on a homologous chromosomes. So what is homologous chromosomes? Homologous chromosome मतलब क्रोमोसोम जिनका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन सिमिलर होता है, which serves similar function, उसको बोलते हैं हम लोग homologous, homo similar basically. Okay, so that's what actually allele means. So जब भी मैं बोलता हूँ कि allele, so हर एक जीन के लिए let's say there are two main alleles. Okay, there are some condition जहाँ पे और कोई भी जीन के लिए मोर देन 2 या फिर 3 alleles हो सकते हैं, बट इन दिस मेनली देयर आर 2 alleles फॉर ईच जीन. तो एक होता है डोमिनेंट और एक होता है रिसेसिव. तो डोमिनेंट एंड रिसेसिव एग्जैक्टली क्या होता है और क्यों होता है और व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, दैट वी विल टॉक इन नेक्स्ट स्लाइड. Okay, so what is dominant? So dominant is an allele that expresses its trait even in presence of an alternative allele. मतलब अगर दो allele से एक टॉल के लिए है और एक ड्वार्फ के लिए है, एंड आई एम सेइंग कि टॉल डोमिनेंट ट्रेट है, तो जबकि ड्वार्फ के लिए भी allele प्रेजेंट है, प्लांट का जो रहेगा फिनोटाइप. हेलो, അത് തന്നെ ഉടനെ ഇങ്ങനെ തുറന്നു നോക്കി എനിക്ക് കാണിച്ചു തരാം. കണ്ടു നോക്കി ഇങ്ങനെ തുറന്നു നോക്കി എന്നിട്ട് തുറന്നു നോക്കിട്ട് അടച്ചു എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കണേ. हेलो, आई थिंक किसी का तो माइक ऑन हुआ है, प्लीज बंद करो. सही पूछा उसने. मैंने शरद भाई को भेजा था ना तो गलती से चैटन को गया. ओके, सो मतलब तो मैं एक्सप्लेन का डोमिनेंट क्या होता है. तो सपोज किसी के पास लेट्स अ पर्सन या फिर अ प्लांट जिसके पास दो alleles है, एक डोमिनेंट एक टॉल के लिए है और एक ड्वार्फ के लिए है. तो जबकि उसके पास दो alleles होते हैं, एक टॉल होता है और एक ड्वार्फ होता है, और प्लांट टॉल हो जाता है जबकि उसके पास ड्वार्फ का भी जीन है, तब हम उसको बोलते हैं कि टॉल इज अ डोमिनेंट allele और टॉल इज अ फीचर जो डोमिनेंट है पर्टिकुलर प्लांट में. तो जब भी प्लांट के पास ऐसे दो alleles रहते हैं और उसमें से एक पर्टिकुलरली एक्सप्रेस हो जाता है, इवन दो उसके पास कोई और एक allele होता है जो एक्सप्रेस नहीं हो पाता, उसे हम लोग बोलते हैं डोमिनेंट ट्रेट और डोमिनेंट फिनोटाइप. एंड
नेक्स्ट इज रिसेसिव. सो बेसिकली एग्जांपल देना चाहूंगा तो टॉल प्लांट अगर मुझे बोलना है हाइट के लिए तो टॉल इज अ डोमिनेंट एंड ड्वार्फ इज द रिसेसिव. सो व्हाट इज रिसेसिव देन? जैसे मैंने बोला कि किसी प्लांट के पास 2 जीन्स है, सो इवन तो 2 जीन्स है, 2 अलील सेलेक्ट से, एंड एक है टॉल के लिए, एक है ड्वार्फ के लिए. एंड तो अगर एक टॉल एंड ड्वार्फ है मतलब उसके बाद टॉल है, टॉल के लिए जीन है, मतलब वो टॉल ही बनेगा, मतलब वो रिसेसिव नहीं बनेगा और डोमिनेंट बनेगा. बट किसी प्लांट के पास अगर बोथ फादर एंड मदर से लेट्स से ओनली ड्वार्फ का आ गया जीन, तो उसके पास सिर्फ ड्वार्फ होने वाला है जीन्स, जो कि एक्सप्रेस हो जाएगा बिकॉज टॉल नहीं है, तो ड्वार्फ अपने आप को एक्सप्रेस करेगा एंड वो प्लांट छोटा ही रहेगा. इट मीन्स दैट विल बी अ ड्वार्फ प्लांट, जिसे हम लोग बोलते हैं ड्वार्फ ट्रेट बेसिकली. दिस इज कॉल्ड अ रिसेसिव. अगर डिफाइन करना चाहूँ तो इसका मतलब होता है दिस इज पर्टिकुलर allele which is not expressed in presence of an alternative allele and it is expressed only in presence of identical allele. So let's say, तो मैंने ऐसे ही बोला था फॉर एग्जांपल इन केस डोमिनेंट, तो अगर मैं टॉल बोल रहा हूँ, जब टी टी या टी टी होगा लाइक कैपिटल टी या स्मॉल टी, तब प्लांट टॉल ही रहेगा. बट जब दोनों भी जीन्स लाइक स्मॉल टी रहेगा, इट मीन्स वो ड्वार्फ रहेगा. तो बेसिकली हम लोग जीन्स को टी टी मतलब जीन्स को पर्टिकुलर लेटर के साथ डिनोट करते हैं. यहाँ पे हम लोग हाइट के लिए बोल रहे हैं तो उसका रिप्रेजेंटेशन हम लोग करते हैं टी से. तो टी रहेगा तो टॉल के लिए टी कैपिटल, ड्वार्फ के लिए टी स्मॉल. ओके, सेम गोज फॉर द अदर कैरेक्टर आल्सो. तो राउंड के लिए आर रहेगा, कैपिटल आर फॉर डोमिनेंट, स्मॉल आर फॉर रिसेसिव, इन दैट वे. ओके, आई होप दिस इज क्लियर. कुछ भी डाउट रहेगा तो प्लीज पोस्ट इट. देन डोमिनेंट एंड रिसेसिव के बाद देयर इज समथिंग कॉल्ड एज फिनोटाइप एंड जीनोटाइप. तो मैंने ऐसे ही बोला कि जब मेंडल ने 18th सेंचुरी में किया था तो उसमें जो भी बोला दैट इज मेनली बिकॉज बेस्ड ऑन द फिनोटाइपिक कैरेक्टर. फिनोटाइप क्या होता है? फिर एक्सटर्नल अपीयरेंस, मतलब कोई कैसा दिखता है, किसी के बाल कर लिए, किसी के आईज ब्लू है, किसी के आईज डार्क ब्राउन है, किसी के आईज ब्लैक है, इन दैट वे. मतलब जो बाहर दिख रहा है उसको देख के स्टडी करना, तो हम लोग उसको बोलते हैं ये सब कैरेक्टर्स को फिनोटाइप. दैट इज external appearance of individual for any trait is called as phenotype. Okay, what is called as phenotype? So tall or dwarf देख के मैं बोल सकता हूँ okay this plant is tall, this plant is dwarf or a short. जो मैं देख के बोल सकता हूँ इसमें this is a phenotypic characters. And then there is something called as genotype. Genotype मतलब एक्सटर्नली तो दिख ही रहा है बट इंटरनली दैट इज जेनेटिकली आल्सो देयर आर सम डिफरेंसेस जो उसके जेनेटिक लेवल पे, मतलब डीएनए में भी कुछ डिफरेंसेस है. जैसे मैंने बोला कि कैपिटल टी एंड कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों भी इंडिकेट करते हैं टॉल को, मतलब डोमिनेंट फीचर को, एंड स्मॉल टी दोनों एक्सप्लेन करते हैं ड्वार्फ को. मतलब अगर मैं बोलूँ डोमिनेंट टॉल के लिए, सो इफ यू कंसीडर टी कैपिटल टी स्मॉल टी, इवन इफ वहाँ पे एक स्मॉल टी है स्टिल इट शोइंग डोमिनेंट फीचर. तो ये हम लोग कब समझेगा? जब हम इसको जेनेटिकली स्टडी करेंगे. तो दैट इज कॉल्ड एज जीनोटाइप. दैट इज अ जेनेटिक कंस्टिट्यूशन ऑफ एन इंडिविजुअल फॉर अ पर्टिकुलर ट्रेट. Okay, then there is something called as homozygous and heterozygous. I would like to tell you this is important and can be asked in your theory exam. मतलब 2 मार्क के लिए डिफरेंस बताओ and all that kind of question or short questions. डिफरेंस क्या होता है between homozygous and heterozygous? तो नाम में ही बता रहा है homo and hetero मतलब क्या? homo is similar, hetero मतलब different. So ओके, सो किसी ने तो पूछा है कि टीटी नहीं आ सकता है क्या? तो बेसिकली टीटी मतलब ड्वार्फ है. मतलब अगर वो पर्टिकुलर प्लांट में जो उसके कैरेक्टर्स आ रहे हैं फ्रॉम द पेरेंट्स, लाइक लेट्स से एग्जांपल फ्रॉम मदर एंड फादर, दोनों की तरफ से भी अगर स्मॉल सी आ रहा है, मतलब ड्वार्फ का कैरेक्टर आ रहा है, तो वो प्लांट ड्वार्फ ही बनेगा. बट अगर उसमें से एक का मतलब फादर ने अगर कैपिटल टी का कैरेक्टर दे दिया, तो डोमिनेंट कैरेक्टर दे दिया, तो उसका ट्रेड भी डोमिनेंट टॉल ही रहेगा. और अगर फादर एंड मदर दोनों ने भी स्मॉल टी दिया, मतलब रिसेसिव कैरेक्टर दिया, तो वो स्मॉल टी होगा.
आई होप दैट्स क्लियर। अगर कुछ होगा तो प्लीज थोड़ा एलेबोरेट क्वेश्चन डालो सो दैट आई कैन गेट एग्जैक्टली क्या नहीं समझा है। सो बैक टू द होमोजाइगोस एंड हेटेरोजाइगस। होमोजाइगस इंडिविजुअल्स क्या होते हैं? सो पर्टिकुलर इंडिविजुअल जिसके पास आइडेंटिकल एलील्स होते हैं फॉर अ पर्टिकुलर ट्रेट। तो जबकि हम लोग अब तक कर रहे हैं बात हाइट की ऑफ अ प्लांट, तो यहाँ पे भी हम लोग उसी को एग्जाम्पल कंसिडर करेंगे। तो अगर मैं टॉल बोलूँ तो जब उसके पास कैपिटल टी दोनों भी रहेंगे, मतलब आइडेंटिकल रहेंगे, तो हम लोग उसको बोलेंगे होमोजाइगस इंडिविजुअल। पर्टिकुलर प्लांट कैन बी कॉल्ड होमोजाइगस इफ इट इज possessing identical alleles for a particular trait. Okay. On other side, हेटेरोजाइगस कब बोलेंगे? कि अ पर्टिकुलर प्लांट जब उसके पास कॉन्ट्रास्टिंग एलील रहेंगे, मतलब कैपिटल टी भी रहेगा और स्मॉल टी भी रहेगा, मतलब डोमिनेंट कैरेक्टर भी रहेगा और रिसेसिव कैरेक्टर भी रहेगा, मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी, विच एक्चुअली शोज टॉल फिनोटाइप, बट जेनेटिकली उसके पास एक रिसेसिव जीन भी होता है, उसको हम लोग बोलते हैं हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल, बिकॉज उसमें दो डिफरेंट कैरेक्टर्स, दो डिफरेंट एलील्स होते हैं। तो होमोजाइगस ब्रीड्स ट्रू द ट्रेट, मतलब होमोजाइगस जब उनका ब्रीडिंग होगा तो उससे जो निकलने वाला है प्लांट्स नेक्स्ट, दैट विल बी आल्सो होमोजाइगस ओनली, टीटी ही दिखेगा। बट दैट इज नॉट द केस इन केस ऑफ हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल। यहाँ पे अगर हम लोग ने इसको टीटी को सेल्फ फर्टिलाइज किया तो हमें इन रिटर्न टॉल भी प्लांट्स मिलेंगे एंड शॉर्ट भी प्लांट्स मिलेंगे, तो दैट इज द डिफरेंस बेसिकली। एंड homozygous mainly produces only one type of gametes, whereas heterozygous produces two types of gametes. As I said, homozygous because वो एक टाइप का गैमेट बनाता है एंड वो प्योर रहता है, इसलिए हम लोग उसको प्योर भी बोलते हैं। However, in case of heterozygous, as there are two different types of alleles, we call it hybrid. Hybrid मतलब क्या? Mixture of two different things. तो hybrid. An example मैंने पहले explain कर दिया था, tall and tall. But genotypically, capital T, small t, capital T. And so जब हम लोग पर्टिकुलरली होमोजाइगस को ही आगे ब्रीड करके हम लोग का जो पर्टिकुलर लाइन बनता है, दैट इज होमोजाइगस ओनली। तो इसको हम लोग, बिकॉज देयर इज नो हाइब्रिड और नो रिसेसिव ट्रेट इन्वॉल्व, ऐसे ग्रुप ऑफ एनिमल्स को, प्लांट्स को या फिर ऑर्गेनिजम्स को हम लोग बोलते हैं प्योर लाइन, मतलब विदाउट एनी मिक्सचर और विदाउट एनी अदर जीन प्रेजेंट, तो ये प्योर लाइन बोलते हैं। आई होप दैट इज क्लियर। Okay, so the next term is the F1 and F2 generation. तो एग्जैक्टली ये होता क्या है? तो तुम लोग को तो डाउट होगा कि एग्जैक्टली टीटी क्या होता है। सो लेट्स से देयर आर टू प्लांट्स, मतलब दो प्लांट्स है उसके पास पी के, एक टॉल प्लांट है, एक ड्वार्फ प्लांट है। टॉल भी जो है वो होमोजाइगस है, मतलब उसके पास टी कैपिटल टी है, शॉर्ट के पास स्मॉल टी है, बिकॉज जब भी दोनों भी शॉर्ट स्मॉल टी रहेंगे तभी वो पर्टिकुलर प्लांट शॉर्ट या फिर ड्वार्फ बोला जाएगा। तो जब गैमेट्स फॉर्म करेंगे तो जो टॉल प्लांट रहेगा वो टॉल वाला कैरेक्टर दे देगा, दैट इज डोमिनेंट वन, और जो शॉर्ट वाला देगा वो स्मॉल टी दे देगा। हाँ, तो किसी ने तो पूछा है सौरभ, सो ही हैज आस्क्ड कि स्मॉल टी भी होमोजाइगस में आएगा क्या? तो हाँ, स्मॉल टी क्योंकि दोनों भी सेम है तो वो होमोजाइगस में आएगा, दैट इज ट्रू। सो बैक टू द टॉपिक अगेन। यहाँ पे ये डायग्राम देख रहे हो तुम लोग, तो गैमेट्स बनने के बाद कैपिटल टी स्मॉल टी, जब उनका फ्यूजन बनेगा तो बनेगा फर्स्ट प्लांट जनरेशन मिलेगा हम लोग को, मतलब फर्स्ट जनरेशन मिलेगा, उससे हम लोग बोलते हैं F1 जनरेशन। F1 मतलब F स्टैंड फॉर फेलियल, तो फर्स्ट फेलियल जनरेशन जिसको हम लोग बोलते हैं F1 जनरेशन इन शॉर्ट। तो अगर हमने कैपिटल टी और स्मॉल टी का फ्यूज किया तो क्या बनेगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। बट इसके पास कैपिटल टी भी है तो ये क्या रहेगा? फिनोटाइपिकली टॉल, इवन इफ उसके पास स्मॉल टी है, बिकॉज उसका जो टॉल वाला फीचर रहेगा, जो कैपिटल टी रहेगा, वो
ड्वार्फ जीन को रिप्रेस कर देगा या फिर उसको एक्सप्रेस होने नहीं देगा। और जब मैं इसको पर्टिकुलर को F1 के साथ ही जब मैं उसको क्रॉस ब्रीड करूंगा या फिर सेल्फ ब्रीड करूंगा तो दैट विल गिव मी, तो दिट इज कॉल्ड अ पनेट स्क्वायर बेसिकली। व्हाट इज दिस पनेट स्क्वायर और चेकर बोर्ड जिसको यूज करके हम लोग चेक करते हैं कि व्हाट ऑल पॉसिबल प्रोजेनीज और ऑफस्प्रिंग्स आर देयर विच वी कैन ऑब्टेन फ्रॉम अ पर्टिकुलर क्रॉस। तो वो सब चेक करने के लिए, मतलब अभी ये टॉल प्लांट और ड्वार्फ प्लांट से हमें कौन कौन से टाइप के प्लांट मिलेंगे, उसमें से कितने ड्वार्फ रहेंगे कितने शॉर्ट रहेंगे, वो सब बताने के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। तो इसीलिए हम लोग अभी F1 में क्या है, टीटी है, तो उसका हम लोग क्रॉस ब्रीड कर सेल्फ ब्रीड करेंगे। तो इफ यू सी, अगर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम टी एंड टी दोनों को एक साथ आएगा कैरेक्टर, तो वो देगा मुझे कैपिटल टी विच इज टॉल। इन अ सेकेंड रो, इन अ फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम अगेन टी कैपिटल टी स्मॉल टी। आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन, जब भी हम लोग लिखते टाइम कैपिटल वर्जन मतलब डोमिनेंट रेट हम लोग पहले लिखते हैं एंड स्मॉल वाला बाद में लिखते हैं। तो जहाँ पे भी हम लोग लिखेंगे कैपिटल 1 विल कम फर्स्ट एंड स्मॉल 1 उसके बाद। ओके, इन अ सेकेंड रो वी कैन सी टी एंड देन लास्ट में दोनों भी स्मॉल आ रहा है तो टी दैट इज द स्मॉल टी ड्वार्फ। और ये जो चार पोजीशन हम लोग को मिल रहे हैं, जो चार प्लांट्स मिल रहे हैं एट लास्ट, उसको हम लोग बोलते हैं F2 generation, that is second filial generation. So by definition if I want to tell you exactly क्या होता है, so first filial generation is something produced from a parental cross, मतलब ये जो मेजर दो प्लांट्स थे जिसको हमने पेरेंट कंसिडर किया था उनसे हम लोग जो मिल रहा है टी that is a first generation. and second मतलब by selfing और inbreeding of F1 plant, मतलब जो F1 है उसको ही हम लोग आपस में ब्रीड कराएंगे और जो उसमें से मिलेगा हमें प्लांट उसको हम लोग बोलते हैं F2 प्लांट। एंड दिस इज अ पनेट स्क्वायर। तो अगर तुमने ये पनेट स्क्वायर ऑब्जर्व किया तो यहाँ पे मुझे चार प्रोजेनिस मिल रहा है। उसमें से अगर तुम देखा फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड ऑल आर टॉल बिकॉज उसमें डोमिनेंट ट्रेट है एंड ओनली वन प्लांट इज अ ड्वार्फ। तो अगर रेशियो देखेंगे हम लोग तो टोटल चार है, चार में से तीन टॉल है और एक शॉर्ट है या फिर ड्वार्फ है। एंड अगर जेनेटिकली देखेंगे हम लोग तो सिर्फ एक ही है जो होमोजाइगस है, होमोजाइगस टॉल है, एक ही है जो होमोजाइगस ड्वार्फ है एंड देन देयर आर टू व्हिच आर हेटेरोजाइगस बट टॉल। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। ये सब टर्म से हम लोग आगे ना आगे भी एक्सप्लेन करेंगे और पढ़ते रहेंगे, तो कुछ भी डाउट रहेगा तो प्लीज बिंदास पूछो, देयर इज नथिंग टू हेजिटेट अबाउट इट। हेलो सर। हाँ सर एक क्वेश्चन था। हेलो। हाँ हाँ हेलो सर। हाँ बोलो ना, सुन रहा हूँ। सर वो जो टी और टी है मतलब स्मॉल टी और कैपिटल टी, सर उसमें जो टी कैपिटल है सर वो क्यों होता है डोमिनेंट, मतलब ओके, सो बेसिकली ऐसा नहीं है कि हमने सो टी कैपिटल टी बोला इसलिए डोमिनेंट है। तो हमारे बॉडी में मतलब कोई भी बॉडी में कोई भी एनिमल में जब हम लोग बोलते हैं कि सब हो रहा है वो जीन की वजह से हो रहा है, मतलब हमारे बॉडी में क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स में डीएनए बना, क्रोमोसोम डीएनए से बनता है और डीएनए में जीन होती है बेसिकली। तो बॉडी में ऑलरेडी देर आर मतलब उसमें रहते हैं दो पर्टिकुलर फैक्टर्स कि अगर मैं बोलूँ कि हाइट है तो टॉल के लिए एक रहेगा जीन और एक शॉर्ट के लिए रहेगा। हमने सिर्फ उसको रिप्रेजेंट करने के लिए ये पर्टिकुलर फॉर्मेट लिया है कि अगर कोई भी जीन अगर टॉल के लिए रहेगा तो हम उसको कैपिटल से डिनोट करेंगे, अगर कोई भी स्मॉल के लिए रहेगा या फिर शॉर्ट के लिए रहेगा तो हम उसके स्मॉल लेटर से डिनोट करेंगे। मतलब वो सिर्फ एक बोलते ना नॉमेनक्लेचर का मेथड है कि हम लोग उसको कैसे लिखेंगे और कैसे उसको एक्सप्लेन करेंगे किसी और को। तो वो दैट इज जस्ट वे टू डिनोट कि वो कैसे एक्सप्लेन करना है और क्या होता है करके। तो बॉडी में हमेशा देयर इज वन डोमिनेंट और वन रिसेसिव। डोमिनेंट रहेगा तो हम लोग उसको कैपिटल लेटर से बोलेंगे, रिसेसिव रहेगा तो शॉर्ट लेटर से बोलेंगे। ओके हाँ सर। या थैंक यू। सो उसके बाद देन मेंडल ने जो भी एक्सप्लेन किया उसने एक्सप्लेन किया था बेस्ड ऑन सम क्रॉसेस। So there is something called as monohybrid cross. I will say again monohybrid cross. So the name itself mono मतलब single. So हम लोग जब भी monohybrid cross बोलते हैं इसका मतलब होता है in this particular crossing
हम लोग सिर्फ वन पर्टिकुलर कैरेक्टर और वन पर्टिकुलर ट्रेट स्टडी करेंगे। सो एट ए टाइम, सो हम लोग एक टाइम पे शायद उसका हाइट ही कंसिडर करेंगे। हाइट का स्टडी करने के बाद अगर हम लोग को कोई और स्टडी करना था, हम लोग उसका साइज का करेंगे, तो हम लोग उसका सीड के लिए अलग से स्टडी करेंगे। बट एक टाइम पे सिर्फ एक ही कैरेक्टर को स्टडी करेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ओके, तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया है, सेम एग्जांपल जो हमने पहले भी देखा है। ओके, तो सेम एग्जांपल जो पहले देखा था, यहाँ पे भी अगेन टॉल प्लांट है, ड्वार्फ प्लांट है। तो टॉल के पास कैपिटल टी डिनोट के लिए जेनेटिक मटेरियल है, मतलब दोनों भी डोमिनेंट जीन्स है। ड्वार्फ के पास दोनों में रिसेसिव जीन्स है। उनका F1 क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, वो दोनों से फ्यूजन होगा, मतलब वो टॉल रहेगा। तो जब उसका सेल्फिंग करेंगे हम लोग, तो हमें मिलेंगे 4 प्लांट, उसमें से 3 रहेंगे टॉल, एक रहेगा ड्वार्फ। हाउएवर इवन मतलब दिखने में वो टॉल है, जेनेटिकली उसमें डिफरेंस है। तो सिर्फ एक ही रहेगा जो पूरा टॉल रहेगा, जबकि 2 रहेंगे जो जेनेटिकली एक टॉल और जिसके पास एक टॉल जीन रहेगा और एक ड्वार्फ जीन रहेगा, एंड एक प्लांट रहेगा जो कंप्लीटली ड्वार्फ रहेगा। ओके, तो इसमें से हमें अभी मुझे अगर स्टडी करना है तो हाउ विल आई एक्सप्लेन, जिसने पहले बोला कि 4 में से 3 है जो टॉल है और एक है जो ड्वार्फ है। ये मैं कैसे बता रहा हूँ कि 4 में से 3 टॉल है और एक ड्वार्फ है, बेस्ड ऑन कि जो मुझे दिखेगा आंखों से, मतलब बेस्ड ऑन एक्सटर्नल अपीयरेंस और फिजिकल अपीयरेंस, जिसको मैं देख के बोल सकता हूँ कि हाँ तू टॉल है तो शॉर्ट है। इसको हम लोग बोलते हैं फिनोटाइपिक रेशियो। मतलब आउट ऑफ 4, 3 आर टॉल, 1 इज अ ड्वार्फ। दिस इज कॉल्ड एज phenotypic ratio. So phenotypic ratio in case of monohybrid cross is 3:1. Very important and important. कि phenotypic ratio for monohybrid cross is 3:1. 3 जो है वो टॉल प्लांट्स रहेंगे, एक रहेगा वो ड्वार्फ रहेंगे। However, जैसे मैंने बोला कि जेनेटिक लेवल पे भी डिफरेंसेस रहेंगे। वो कैसे रहेंगे, तो 2 हाइब्रिड यहाँ पे दिख रहे हैं हमें, तो हम लोग उसको इवन तो दे आर टॉल, जब मैं जीनोटिपिकली मतलब जेनेटिक मेकअप के बेसिस पे उनको क्लासिफाई करूंगा और एक्सप्लेन करूंगा, मैं उसको करूंगा विद द हेल्प ऑफ जीनोटाइपिक रेशियो। मतलब जीन लेवल पे क्या डिफरेंस है जो मुझे दिख रहा है F2 जनरेशन में, तो इसको हम लोग बोलेंगे जीनोटाइपिक रेशियो। अगर मुझे यहाँ पे देखना है तो यू कैन सी, यहाँ पे सिर्फ एक टॉल है, 2 हाइब्रिड टॉल है और एक शॉर्ट है और ड्वार्फ है। तो यहाँ पे एक टॉल मतलब 1, 2 ड्वार्फ और 2 हाइब्रिड टॉल मतलब 1 and 2, and then last में एक dwarf which is a dominant homozygous, that is a recessive homozygous which is 1. So the ratio is 1:2:1. This is called as monohybrid cross के लिए genotypic ratio. Okay, I hope तुम लोग को phenotypic and genotypic का difference समझ में आए। Phenotypic is something जो physical appearance के basis पे होता है, and genetic के basis पे जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं genotypic. Okay. Okay. In a same way, there is something called as dihybrid cross. तो मैंने बोला कि मोनोहाइब्रिड में सिर्फ एक ही पर्टिकुलर कैरेक्टर स्टडी करते हैं, डाइहाइब्रिड में 2 करते हैं, तो उसको डाइहाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। तो सेम पैटर्न जो हमने मोनोहाइब्रिड में देखा, यहाँ पे हमने राउंड और येलो सीड्स है, यहाँ पे रिंकल एंड ग्रीन। राउंड एंड येलो सीड्स डोमिनेंट कैरेक्टर है, मतलब वो डोमिनेंट कैरेक्टर है, इसलिए उसको कैपिटल लेटर से एक्सप्लेन किया है RRYY। जबकि रिंकल एंड ग्रीन सीड्स आर रिसेसिव कैरेक्टर्स, इसलिए उनको हम लोग स्मॉल लेटर से डिनोट करेंगे, स्मॉल आर स्मॉल वन। इनके जो गैमेट्स रहेंगे, तो गैमेट्स भी कैसे बनेंगे, राउंड के लिए R में से R आएगा, येलो के लिए कैपिटल Y में से Y आएगा। सेम फॉर रिसेसिव के लिए स्मॉल R में से एक R आएगा, स्मॉल Y में से एक Y आएगा। और फिर इनका जो फ्यूजन होगा, इसका जो जनरेशन फर्स्ट आएगा जिसको हम लोग F1 जनरेशन बोलेंगे, वो क्या रहेगा, राउंड एंड येलो। देखो डोमिनेंट कैरेक्टर दिखेगा, बिकॉज उसके पास एक R है और एक कैपिटल R है, एक कैपिटल Y, मतलब उसके पास वो हाइब्रिड है बट उसके पास डोमिनेंट कैरेक्टर्स है। और जब हम इसको अगेन सेल्फिंग करेंगे, मतलब इसका जब हम लोग इनब्रीडिंग करेंगे उस सेम प्लांट के साथ, तो हमें मिलेंगे टोटल 16 प्लांट्स। तो तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे कैरेक्टर्स, तो गैमेट्स क्या रहेंगे इसके, कैपिटल R कैपिटल Y, कैपिटल R स्मॉल y, स्मॉल r कैपिटल Y, स्मॉल r स्मॉल y। सेम को हम लोग सेल्फिंग करेंगे और फिर हम लोग को ये 16 कैरेक्टर्स या फिर 16 प्लांट्स मिलेंगे एज अ प्रोजेनी।
तो अगर हम लोग देखेंगे कि जो फर्स्ट वाला है, सॉरी यहाँ पे एक वाई मिसिंग है, बट जस्ट कंसीडर, तो यहाँ पे आर आर वाई वाई फर्स्ट वाला बॉक्स, सेकंड में आर आई कैपिटल वाई स्मॉल वाई, देन कैपिटल आर स्मॉल आर वाई वाई, तो हम उसको रीड करेंगे एंड फिर हर एक का एक मतलब है। अगर मैं फर्स्ट कंसिडर करूंगा फर्स्ट बॉक्स को, तो कैपिटल आर और कैपिटल वाई मतलब दोनों में डोमिनेंट रेट थी, मतलब वो रहेगा राउंड एंड येलो। जबकि अगर लास्ट वाला बॉक्स देखेंगे हम लोग जिसमें स्मॉल आर स्मॉल वाई है, उसका मतलब है उसके पास दोनों भी रिसेसिव कैरेक्टर्स है, इसलिए वो रहेगा रिंकल एंड ग्रू। तो दिस इज द वे, मतलब इसको हम लोग जैसे हम लोग पनेट स्क्वायर में एग्जांपल के तौर में दिया है, दिस इज द वे हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। आई वुड लाइक कि तुम लोग इसको स्टडी करके मुझे नेक्स्ट लेक्चर में व्हाट विल बी द फिनोटाइपिक एंड जीनोटाइपिक रेशियो फॉर अ डायहाइब्रिड क्रॉस वो बताओगे। ओके, आई रिपीट, व्हाट विल बी द फिनोटाइपिक एंड जीनोटाइपिक रेशियो फॉर अ डायहाइब्रिड क्रॉस। आई होप सब लोग ने नोट डाउन करके रखा है जो मैंने बोला है। इन नेक्स्ट लेक्चर आई एक्सपेक्ट कि सब लोग का कमेंट में आएगा रेशियो क्या रहेगा। ओके, सो किसी ने तो पूछा है कि ये आर आर वाई वाई और आर आई वाई का फ्यूजन अपने आप होता है या करवाना पड़ता है। तो ये अपने आप भी होता है नेचुरली, बट हम लोग इसको आर्टिफिशियल भी करा सकते हैं। तो हम लोग दो प्लांट को साथ में आके उनका फ्यूजन मतलब उनका रिप्रोडक्शन करवा सकते हैं। जब जैसे कि हम लोग हमें पता है प्लांट में कैसे होता है रिप्रोडक्शन, उसके जो स्पोर्स रहते हैं, जो उसके गैमेट्स रहते हैं, उनका फ्यूजन करवाना पड़ता है। तो यहाँ पे आर्टिफिशियल इनकैप्सुलेशन करवा के दोनों प्लांट को साथ में लाके भी कर सकते हैं, बट नेचुरली भी होता है। तो अगर हमें साइंटिफिकली एक्सपेरिमेंट के लिए करना है तो हम लोग नेचुरल के लिए वेट नहीं करेंगे, हम लोग उसको आर्टिफिशियली करेंगे यार। और अगर कोई जरूरत नहीं है नेचुरल होना तो नेचुरली भी हो सकता है, बट इट विल टेक थोड़ा टाइम। आई थिंक जस्ट लास्ट फ्यू मिनट्स अपने पास हैं। आई होप यहाँ तक सबको सब क्लियर है। कुछ डाउट रहेगा तो प्लीज टेक्स्ट करो या फिर पूछो।